أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. چلو اللہ کا شکر ہے. گزشتہ سالوں میں لوگ اثر کے بعد آئے تھے. کون کون آئے تھے؟ اثر کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں آپ لوگ آئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. آج آپ کے یہاں مجمع بہت تھوڑا ہے. آپ لوگ مجلس کو نہیں لائے ہو. اچھا ایگزام کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو یاد ہے اثر کے بعد آپ کو یہاں کیوں بلاتے ہیں؟ پہلے آپ لوگ مجلس میں آتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں تو ہوگا بھائی آپ حضرات کو یہاں کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلاتے، بیان سنانے کے لیے نہیں بلاتے. اگر آپ کو بیان سنانے کا ہوتا تو ابھی پنڈال میں کیا ہو رہا ہے بولو. تو آپ کو ہم کیا کہتے؟ ہم آپ کو کیا کہتے؟ ارے بولو بھائی پنڈال میں چلے جاؤ، وہاں بیان ہی ہو رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا تھا نا، ایسا نہیں کیا نا. تو آپ حضرات کو یہاں خاص طور سے بلاتے ہیں. آپ کو بتائیں آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں یہ اسکول کالج پڑھنے والا جو مجمع ہوتا ہے یہ امت کا بہت اہم طبقہ ہوتا ہے. یہی جا کر آگے بڑھ کر امت کے بڑے بنتے ہیں. یہ تو اب پچھلے زمانے میں جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو علماء پیدا ہو گئے، دین والے لوگ پیدا ہو گئے، ورنہ دین کے کام بھی یہی لوگ کرتے تھے. اکثر ضلعوں کے ذمہ دار آپ دیکھو گے پہلے زمانے میں تو پروفیسر وہی حضرت تھے. ہمارے گودھرا میں بہت علماء ہیں لیکن گودھرے کے اندر سب پروفیسر ہے. وہ جونے پرانے لوگ. آپ کے یہاں سب ایسے ہی لوگ تھے. اقبال بھائی وغیرہ وہ اور یہ عبد الکریم صاحب انجینئر تھے، شبیر ظفر بھائی یہ حضرات تھے نا سارے ضلعوں میں. ہمارا بھروچ ہے وہ ماشٹر ابراہیم صاحب تھے، ابھی بھی حیات ہے. تو اکثر ضلعوں میں ایسا ہی تھا کہ یہی لوگ دین کے شعبوں کو بھی سنبھالتے تھے. اکثر وہ لوگ جو دین کے شعبوں کو سنبھالتے تھے وہ لوگ تھے کہ ان کو اسکول کے ماحول میں اچھے استاد ملے تھے. انہوں نے ان کی پڑھائی کے ساتھ ان کا ذہن دینی ذہن بنا. دینی سے اس زمانے میں پڑھائی بھی اسکولوں میں بہت اچھی ہوتی تھی. ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب 4ویں جماعت میں تھے. انگریزی بھی بہت اچھے بولتے ہیں، عربی بھی بہت اچھے بولتے ہیں. ان کا کارخانہ ہے، ان کے 4-5 کارخانے ہیں. ایک کارخانے میں 1500 آدمی ہیں. ایسے 4-5 کارخانے ہیں ان کے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ انگریزی کہاں سے بولتے ہو؟ کہ 10ویں پڑھی ہے نا. کیا پڑھی ہے؟ 10ویں پڑھی ہے. پر عربی کہاں سے بولتے ہو؟ کہ ہمارا 8ویں 9ویں 10ویں میں 3 سال سبجیکٹ عربی تھا تو عربی سیکھ لی. تو کیسے اچھے پڑھانے والے لوگ ہوں گے کہ 10ویں پوری ہو گئی تو انگریزی میں بیان کرتے تھے ہم اور عربی میں بھی بیان کرتے تھے. تو میں حیران ہو گیا. اس سے آگے نہیں پڑھے وہ، سمجھے آپ بات. تو اسکول کے ماحول میں ان کو اچھے اساتذہ مل جاتے تھے تو ان کو یہ شعور یہ سمجھ بھی دیتے تھے. ہمارا بھروچ ضلع ہے. بھروچ ضلع میں ہر گاؤں میں مسلمانوں کے اسکول ہے، مسلم اسکول ہے. تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ یہاں کہاں سے آ گئے. اور ضلعوں میں اب نئی نئی اسکولیں بن رہی ہیں، مسلم اسکولیں اب سب جگہ بن رہی ہیں اور بھروچ ضلع میں ہر گاؤں میں ہے. تو اکثر ان کے وہاں ماسٹر لوگ ٹیچر حضرات وہ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع ٹیچنگ میں ہے، پڑھانے میں ہے. تو ان کو وہاں اسکولوں میں وہ شعور ملا کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں تعلیمی ادارے بنانے چاہیے. تو اکثر بھروچ ضلع کے دیہاتوں میں انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے بنائے اور ان کے وہاں کے بڈھے اوٹلے پر بیٹھے بیٹھے اسکول چلا لیتے ہیں. کہاں بیٹھے بیٹھے؟ ارے بولو. اوٹلے پر بیٹھے بیٹھے، آفسوں میں نہیں. اور شاندار مینجمنٹ اور پڑھائی اچھی کرتے کرتے پتہ نہیں بچے کہاں پہنچتے ہیں. ابھی ہم بھروچ وہاں سے وہاں ایک بچہ ملا بنگلور میں وہاں پڑھائی کر کے آگے کی پڑھائی کے لیے آیا ہوں. ابھی ایک لڑکا ہم کو ملا ڈیلاس میں. تو
تو कहने लगा कि मैं भरूचा हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने मद्रास में पढ़ाया, अब फिर अमेरिका गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पढ़ने बुलाया है, मेरा सारा खर्चा वो उठा रहा है। और वो जो देखे तो ऐसा लगे कि हाफिज जी है कोई, समझे बात आप? तो शनाख्त न कर सके कि ये इस तरह की मेयारी तालीम पढ़ रहा है। तो उस जमाने में स्कूल के माहौल में ही बच्चों को अच्छा शऊर मिल जाता था। फिर वही कौम के बड़े बने तो कौम की रहबरी उन्होंने की, कौम को लेकर चले। फिर अल्लाह पाक ने तबलीग का काम चला दिया तो बस्ती बस्ती उलमा पैदा हो गए, वरना उस जमाने में उलमा भी नहीं थे। तो ये स्कूल में पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी दर्जे में कौम और समाज के बड़े बनते हैं। कौन बनते हैं बोलो? अरे बोलो तो खरे भाई। गुजरात में कहेवत છે, આજનો છોડ કાલનું ઝાડ, આજનો ફેરિયો કાલનો વેપારી, અને આજની કળી કાलનું फूल। ये आज की सब कलियां हैं, ये सब आज की कल क्या बन जाएंगे? और ये सब आज के सब पौधे हैं, कल क्या बन जाएंगे? दरख्त। ये सब आजकल छोटे छोटे छोड़ हैं, ये आज के फेरिये हैं, कल के व्यापारी बन जाएंगे। हमारे हजरात को ये फिक्र होती है कि ये बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो जैसे पहले ज़माने में अच्छे बच्चे बनते थे, ऐसे इस ज़माने के हमारे बच्चे अच्छे परवान चढ़ें, अच्छे बने, अच्छे फलें फूलें, इसके लिए इनको फिक्र दिलाई जाए। तो वो फिक्र दिलाने के लिए आपको यहाँ बुलाते हैं। क्यों आपको स्पेशल इस माहौल में बुलाते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में जो माहौल था उस ज़माने में और अभी के ज़माने के माहौल में बहुत फ़र्क हो गया है ना? हो गया नहीं हो गया? हम जब बचपन में थे तो हमने टेलीफोन देखे ही नहीं थे, फोन देखे ही नहीं थे। जब हम पढ़ने गए तो गांव में एसटीडी पीसीओ हो तो वहां से फोन करने जाने का, पूरे मोहल्ले में 2-3 फोन होते थे, सबके फोन उसी पर आते थे। तो बिगड़ने के असबाब उस जमाने में कम थे। बिगड़ने के असबाब जैसे जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने से हम लोग दूर होते गए, बिगड़ने के असबाब बढ़ गए। और खासकर स्कूल और कॉलेज, पहले जमाने में उस्ताद को गुरु कहते थे और तलीब इल्म को शिष्य कहते थे। जैसे जैसे पीर मुरीद होता है, पीर और मुरीद, तो पीर और मुरीद कैसे एक दूसरे की तरबियत हो जाती है, ऐसे स्कूल पढ़ाने वाले को क्या कहते थे? गुरु। और पढ़ाने वाले को, जैसे वो अपने 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 किसके पास गया हो, वो गुरु के पास गया हो। जैसे कोई आदमी किसी से बैत हो जाए और कैसी तरबियत लेता है, ऐसे उस्तादों से तरबियत ले लेते थे। अब ऐसे उस्ताद भी खत्म हो गए। तो स्कूल के माहौल में फसाद आ गया। क्या आ गया? आपके आप देखें कि पहले जमाने के लोगों को पूछें कि उस जमाने का और अब में का फसाद आ गया कि बच्चा बुराइयों से बचना चाहे तो भी नहीं बच पा रहा, ऐसे असबाब पैदा हो गए। बोले ऐसे हो रहे नहीं हो रहे? तो आप हजरात के साथ दो चीजें लगी हुई है, वो दो चीजें आप हजरात को खराब कर सकती है, उचक सकती है। वो दोनों चीजें आप में से बचा कर आप आगे निकल जाओ और अच्छे आगे निकलो, परवान चढ़ो, फलो फूलो और उम्मत के लिए अच्छा मजमा बनकर जाहिर हो जाओ। ये फिक्र तो आप हजरत को खुद होनी थी, ये जागरूक थी, ये फिक्र आपके अंदर खुद होनी थी। लेकिन आज के माहौल में बहुत कम बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसी जागरूकता, ऐसी बेदारी हो, ऐसे बच्चे कम होते हैं। अगर बच्चे में नहीं है तो दूसरे नंबर पर ये जागरूकता लाने की फिक्र वालिदैन में होती है। वालिदैन में कि मेरे बेटे को मैं ऐसा परवान चढ़ाऊं कि मेरा बेटा सारे अला बला से बचते हुए, सारे बीमारियों से बचते हुए आगे निकल जाए। लेकिन माँ बाप में भी इसकी बेदारी और जागरूकता कम नजर आती है। अब तो यहाँ से लड़कों को अकेले भेजते हैं पढ़ने के लिए कनाडा, टोरंटो, लड़कियों को भी भेजते हैं। अभी हम लोग टोरंटो में थे तो मैंने पूछा क्या हालात है यहाँ के? मौलवी साहब हमारे वहाँ से लड़कियाँ पढ़ने आ रही है, तो लड़के गैरों के लड़के और हमारी लड़कियां साथ रहती है, एक कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां रहती। तो माँ बाप को भी वो फिक्र खत्म हो गई। अभी इसी महीने में हम लोग एक गांव में थे तो उसके घर में औलाद नहीं थी, तो उसने एक लड़की को गोद लिया और अभी उसने लड़की को टोरंटो पढ़ने भेजा है। तो ये सूरत हाल बनती गई। वालिदैन के अंदर भी इसका एहसास कमजोर होता जा रहा है। लेकिन जिन वालिदैन में एहसास है वो आखिर तक लगे रहते हैं, फिक्र में रहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, फले फूले और वो सारी गंदगियों से महफूज हो जाए। इसकी फिक्र किसी न किसी दर्जे में आपके ऊपर भी, किसी न किसी दर्जे में आपके माँ बाप की ये फिक्र है
اسی لیے آپ حضرات کو اجتماع میں بھیجتے ہیں, تبلیغ میں بھیجتے ہیں. اگر آپ کے والدین میں فکر نہ ہوتی تو شاید آپ اجتماع میں بھی نہ آتے اور تبلیغی بھی نظر نہ آتے. لیکن ماں باپ کا سہارا کتنے دن ہوتا ہے. آپ خود اتنے مضبوط بن جاؤ کہ ماں باپ بیچ میں رہیں کہ نہ رہیں, آپ اپنے آپ کو سنبھلتے ہوئے آگے نکلنے والے بنو. اس کی فکر لانے کے لیے آپ کو ہر مرتبہ اجتماع میں سرکردہ جوڑتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے, جو دونوں چیزیں ہمارے اس سرمایہ کو, ہماری اس منڈی کو اور ہماری اس کیپٹل کو ضائع اور برباد کر سکتی ہے. ایک ان کی عمر کا تقاضا, جوانی, عمر کا تقاضا جو کون سی ہے. اور جوانی کے متعلق کیوں کہتے ہیں جوانی دیوانی. جوان الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے. آپ دیکھنا اسی عمر میں بچے کے اچرنگی پچرنگی ماڈل نظر آئیں گے. کسی کے بال یوں کٹے ہوئے, کسی کے یوں کٹے ہوئے, کسی کے یوں لٹکے ہوئے, کسی کے یوں اٹھے ہوئے, کسی کے پینٹ اونچی, ایک پائچہ اونچا ایک پائچہ نیچا, کسی کا یہاں سے کٹنگ, کسی کے وہاں سے کٹنگ, کسی آگے کسی کے پیچھے. یہ ساری ڈیزائنیں ماڈل اسی زمانے میں نظر آئیں گے. اس سے چھوٹی عمر میں ماں باپ کروا میں تو ہوتا ہے, اگر ماں باپ نہ کروائیں تو چھوٹے ماڈلوں میں نظر نہیں آتا, اور اس سے اوپر کے ماڈل میں بھی نظر نہیں آتا. جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسی عمر میں آتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں جوانی. یہ کبھی بال یوں لٹکا دیے, کبھی یوں لٹکا دیے, کبھی یوں اونچے کر دیے, کبھی یوں پچھڑا لٹکا دیا. الگ الگ ڈیزائنیں ہوتی ہے نا. آدمی کو ایسا لگتا ہے میں اچھا دکھتا ہوں. پہاڑ پر ڈونگر پر آدمی ہوتا ہے نا تو وہ سب کو چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں. زمین کے لوگ اس کو سب چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں. زمین والوں کو پوچھو وہ کیسا دکھتا ہے, کہ وہ بھی چھوٹا دکھتا ہے. جہاز میں سے دنیا کی سب چیزیں چھوٹی نظر آتی ہے. دنیا والوں سے پوچھے جہاز کیسا لگتا ہے, کہ وہ بھی چھوٹا لگتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر یہ سب چیزیں کرتا ہے کہ میں اسے ایسا دکھاؤں ایسا دکھاؤں. لیکن آدمی کی اوڑکھان اس کی حرکتوں سے ہوتی ہے. اوڑکھان کہ یہ کیسے کلچر کا ہے, کیسی رہنی کرنی کا ہے. ایک اس کی اٹھک بیٹھک, اس کی بول چال, اور دوسری اس کی وانی. دوسری اس کی وانی. کوئی آدمی کو اوڑک نہ ہو تو اس کو بولنے کا موقع دو, چانس دو بولنے کا, تو خبر پڑ جائے گی کہ کیا چیز ہے. عیب و ہنرش نہفتہ باشد تاوتے کے نہ گفتہ باشد. بولنے دو صاحب کو, بولنے دو. بولیں گے تو خبر پڑے گی کہ کس وچار دھارا کے آدمی ہے. لوگوں کو بولنے دو, یوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو بولنے دو. جب بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدمی کس وچار دھارا کا ہے. تو آدمی کی رہنی کرنی اس کے اندر کی چیزیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز پل رہی ہے. اس کے اندر کیا چیز پل رہی ہے. تو اکثر اسکول کے ماحول میں یہ چیزیں بچوں کو اسی عمر میں لگتی ہے. اور اسی ماحول میں بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ماحول میں کہنے سننے کے مذاکروں میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک دم تن لیتے ہیں, ایک دم تن لے کر نکلتے ہیں اور ایک دم تیز رفتار سے آگے نکلتے ہیں. ابھی ہم بلساڑ سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے. سفر کرتے کرتے یہاں پہنچا, آخری ہمارا اجتماع ہے, یہ آخری ہے, کل سب کی واپسی ہوگی. تو ہم نے بچوں کو اجتماع میں پوچھا کہ آپ لوگ ان جوڑوں میں آئے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا. ایک بچہ کھڑا ہوا, کہا مجھے پڑھنے میں آلس آتی تھی. کیا بولا وہ, مجھے پڑھنے میں, لیکن آپ کے ان جوڑوں میں آیا تو میرے اندر بیداری آ گئی, میں چوکنا ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھل لیا. میں پہلے پڑھائی نہیں کرتا تھا, لیکن آپ کے جوڑوں میں آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اب سب گندگیوں سے بچاتے ہوئے نکالا ہے. اور پھر کہنے لگا میں اب ٹاپ 10 میں آنے والوں میں ہو گیا. کتنوں میں ہو گیا, ارے بولو بھائی, ٹاپ 10 میں آنے والوں میں ہو گیا. ایک بچے نے سنایا کہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا, پھر اس نے کیا کہا پتا ہے, میں ایک ساتھ 16 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا. کتنے میں, تو ہمارے اسکول والوں نے مجھے یہاں تختی لٹکائی اور پوری اسکول میں گھمایا کہ ہمارے اسکول کا یہ ماڈل نمونہ دیکھ لو. کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوا, پتہ نہیں وہ کیا 16 ہوں گے. ہم تو 5ویں دوران تک سلیٹ لے کر جاتے تھے, سلیٹ میں پین, کیا لے کر گئے, سلیٹ میں پین. پر میری دکان پر آتے ہیں وہ کون لوگ جو پتہ نہیں کیا کیا بڑے لے, تو اس نے 100 روپے دیے ہوں, میں 59.5 کا لیا ہو, تو کیوں گنتا ہے کہ اب اتنے بچے, کتنے بچے. سلیٹ پین والے گن کر بغیر گنے بتاتے ہیں, اور وہ جو کمپیوٹر دبا کر پھنڈنے والے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں کہ بھائی 100 روپے دیے تو 78.5 کا لیا, کتنے بچے, تو وہ یہ گنتا ہے, بٹن دبا کر گنتا ہے. اتنا فرق پڑ گیا. ہمارے والد رحمان ہیں, ہمارے ساتھ قافلے میں ہوتے ہیں, ان کے بھائی ابھی ہے, تو وہ ایک چوپڑی بنے ہوئے ہیں. کتنے, اللہ بول تو کھرا, ایک چوپڑی. 150 آدمی ان کے پاس کام کرتے ہیں
दोहड़े का घड़िया बोलते हैं, सवा का बोलते हैं, पौने का बोलते हैं, सवा दो का बोलते हैं, ढाई का बोलते हैं। समझे आप बात? सवा सवा इतना, डेढ़ा डेढ़ा इतना, पौने दो इतने, वो उसका घड़िया उनको आवड़ता है। वो कहाँ तक बने थे? पहली चौपड़ी स्लेट लेकर गए थे हम लोग, 5वें धोरण तक स्लेट लेकर गए। स्लेट में पेन, क्या लेकर गए? स्लेट में पेन। 6ठी धोरण में मास्टर चौपड़ी नोट मंगवाता था। कौन से धोरण में? 6ठे धोरण में। तो खैर, तो वो लड़के ने कहा तो मैं इस पर कह रहा था 16 सब्जेक्ट को क्या बला होती थी, हम तो स्लेट पेन वाले थे। वो कह रहा है कि मैं 16 में फेल हो गया। फिर आपके इस मजलिस में मैं मुजाकरे में आया, उसके बाद मुझे जागरूकता आ गई, बेदारी आ गई, और मैंने अपने आप को संभाला, और एक ही साल में 16 सब्जेक्ट क्लियर किए फिर मैंने। तो ये चीजें संभलने का जरिया बन जाती है। तो आप अपने माँ बाप के बच्चे हो जरूर हो, लेकिन आप हमारे बुजुर्गों की भी औलाद हो, आप हमारा भविष्य हो, आप हमारा मुस्तकबिल हो। आप हमारा क्या हो बोलो? आप हमारा भविष्य हो। जैसे हमारे अपने बच्चे, हम उनके लिए चाहते हैं कि वो जाया ना हो जाए। हम आप में से एक भी बच्चा जाया हो जाए उस पर हम राजी नहीं है। आप में से एक भी बच्चा जाया हो जाए, वो गलत पर चला जाए, उसकी पढ़ाई में कमजोरी आ जाए, हम उस पर राजी नहीं हैं। आप उन हालात से गुजर रहे हैं जिसमें जाये होने के असबाब भरपूर मौजूद है। हम लोग अभी जयपुर थोड़े दिनों पहले गए थे, तो एक पीठ सिमलवाड़ा का लड़का है। पीठ सिमलवाड़ा जो जिला है वो तबलीग में गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो वो लड़का आया और कहने लगा, हम यहाँ 35 स्टूडेंट्स एमबीबीएस में है। तो ये 35 स्टूडेंट जो है एमबीबीएस में है, बहुत ही गंदे गुनाहों में है, और अभी वो ऊपर गुनाह में है। आप मेरे साथ चलोगे ऊपर? मैंने कहा भाई जिस वक्त गुनाह में हो उस वक्त नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा उनको शाम के खाने की दावत दो। तो उनको शाम को बुलाया। अब वो पढ़ने गए हैं लेकिन भरपूर गुनाहों में मुब्तला हो गए। हम लोग यहाँ गुज़िश्ता इज्तिमा में आए थे एक मौके पर सरखेज के। तो एक लड़का आया, वो कहने लगा कि यहाँ एक मेरे साथ स्टूडेंट पढ़ता है अपने पड़ोस के जिले का, तो उसके अब्बा ने बड़ा देकर पैसे देकर यहाँ उसका दाखिला करवाया है, लेकिन उसके दोस्त गलत हो गए हैं। अब वो दिन भर शराब में होता है, तो मैं उसको लेकर आऊँ, आप उससे मिलोगे? मैंने कहा जरूर लेकर आते हो। वो लेकर आया तो मैंने देखा उसको कोई होश नहीं था, उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। अब माँ बाप उसके दूर है, पैसे भेज रहे हैं, अब उसको यहाँ गलत सर्कल मिल गया, गलत दोस्त मिल गए। और गुजराती में कहावत है, जेवो संग तेवो रंग, जेवो संग तेवो रंग। फिर वो बेचारा, उसको नहीं पता कि अभी रंग ये गलत चढ़ा उसको, फिर उसके बाद वो ऐसा ही बड़ा होता जाएगा। अब गलत आदतें उसके साथ चिपक जाएगी, फिर उसके अंदर जो चीजें हैं वो उसके पता नहीं किसमें किसमें मुंतकिल होगी। अपने गुजराती में थे हम 5वें धोरण में, तो हमको एक पूछा था कि एक आनो भावार्थ लखो, मोरना ईंडा चितरवा न पड़े, एनो भावार्थ लखो। तुम बताओ भाई, बताओ। मोरना ईंडा चितरवा न पड़े, एनो भावार्थ लखो। हाँ बेटा, शाबाश, बहुत कम मुझे बताते हैं, तुम अच्छे पढ़ रहे हो। उसने कहा माँ बाप के लक्षण औलाद में खुद ही आते हैं, लाने नहीं पड़ते। इसका भावार्थ मुझे बताने वाले बहुत कम होते हैं। हमने 5वें धोरण में पढ़ा था। कौन से धोरण में? तो माँ बाप अब गलत बन रहे हैं, तो बच्चे भी उनके जरिए से गलत ही रुख पर जाएंगे। गुजराती में कहावत है, जेवो वड तेवा टेटा, में जेवो बाप तेवा बेटा। गुजराती तुमने भणी है। जेवो वड એની વ્યાખ્યા કોણ કરીને મને બતાવશે? જેવો વડ તેવા, કોણ મને સમજાવશે? કોણ સમજાવશે? जी भाई, જેવો બાપ તેવા बेटा। अब आदमी अगर गलत बड़ा बना तो उसकी नस्ल गलत हो जाएगी, क्यों? बच्चे उसी को देखेंगे, उसी को परवान चढ़ेंगे। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से आप हजरत की हमदर्दी की जाती है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इन लाइनों में पढ़ने का मौका दिया है, तो ये इन सारी गंदगियों से कैसे बच जाएं। और दो चीजें आपको राय करने वाली है। एक, जवानी की उम्र। जवानी को क्या कहा? जवानी दीवानी। एक जवानी की उम्र, और दूसरा स्कूल और कॉलेज का माहौल। स्कूल और कॉलेज के माहौल में पहले जो पाबंदियां थी, अब वो पाबंदियां कम हो रही है, बच्चों में जरूरत पैदा हो रही है, और पता नहीं क्या क्या चीजें।
تو वो बहुत सारों को लग जाती है। हमारे इन बच्चों को ये चीज़ें न लगे, उसके लिए आप हजरत को यहाँ रहते हुए चंद अमाल की रहबरी करते हैं कि अगर इन चंद अमाल के साथ हमारे बच्चों का पढ़ना हो गया तो दो चीज़ें होगी, एक हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे और दूसरा हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएंगे। एक हमारे बच्चे गंदगियों से महफूज हो जाएंगे और दूसरा हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे हो जाएंगे। उसमें सबसे पहली बात एक ये कहते हैं कि हम सब ईमान वाले हैं, हर एक का ये ध्यान होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान का ध्यान होने का मतलब कि मैं कोई भी हरकत करूंगा, मैं कोई भी अगर अच्छाई करूंगा तो मुझे मेरे अच्छाई का बदला मिलने वाला है, और खुदा न करे मैं चूकें करूंगा, लफ्जिशें भूलें करूंगा तो मुझे मेरी लफ्जिशों और भूलों का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। एक ईमान वाला और गैर ईमान वाला दो में फर्क है। गैर ईमान वाले के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत बनाई है, वो जो चाहे करे। ईमान वाले के लिए दुनिया जन्नत नहीं है, उसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जो वो करेगा वो उसको भुगतना है। जब उसकी उम्र 15 साल की हो जाती है तो उसकी सारी बातें यहाँ लिखी जाती है। अब वो 15 साल के बाद तक 22 साल तक पढ़ता है, 22 साल तक, 15 से 22, 23, 24 तक वो ऐसा समझता है मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मजे करने के दिन है। वो ये भूल जाता है कि मेरी सारी बातें नोट होती है, और जैसे लोग करते हैं ऐसे वो भी करता है, और उसकी सारी चीजें जमा हो गई होती है। जब पापनो घड़ो भराए ત્યારે એ छलकाए, पापनो घड़ो, एक वक्त आता है कि जब उसकी सब चीजें जमा हो जाती है। आप देखना बहुत सारे मैंने देखा है, माफ करना आगे बात कहूँ आपको बुरा नहीं लगेगा, मैं बहुत सारों को मैंने देखा है कि वो अच्छी पढ़े लिख कर अच्छी पोस्टों पर चले गए, लेकिन उनके जीने में से सुकून खत्म हो गया, जीने का चैन खत्म हो गया। हम लोग एक जगह गए रियूनियन, तो रियूनियन हम लोग गए तो हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उनके इलाज के लिए एक डॉक्टर साहब के पास गए, तो पैसे दे रहे थे हम, तो कहने लगे मुझे पैसे नहीं चाहिए, और रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा मेरी जिंदगी का चैन खत्म हो गया। तुम्हें क्या हुआ? कहा देखो ये मेरी बेटी मुझे यूं कहती है कि जाओ तुम ये बिल्डिंग छोड़कर चले जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ इस बिल्डिंग में, मेरी बेटी मुझे घर से निकाल रही है। ऐसा एक वाकया नहीं, 50 वाकयात आपको हम बता सकते हैं कि बच्चों को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, लेकिन बच्चों को जो सिखाने की चीजें थी वो नहीं सिखा पाए, तो वही औलादें उनके लिए बड़ी गर्दसर हो गई। तो औलादों को अल्लाह ने उनके लिए अजाब बना दिया कि चैन का जीना खत्म हो गया, चैन की सुकून की जिंदगी उनकी। ये ऐसा नहीं है कि उनका खत्म हुआ, वो स्कूल की लाइफ में जो चुके हुई थी वो सब जमा हुई है। अब वो तौबा करना, ऐसी चीजें नहीं करना, उसकी रहबरी नहीं हुई। एक मोटी मिसाल, अक्सर स्कूल लाइफ में बच्चे बच्चियां साथ में पढ़ते हैं, और बच्चे और बच्चियां बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बच्चे बच्चे जमा होंगे, जहां लड़का लड़की जमा होगा वहां तीसरा शैतान होता है, वहां तीसरा शैतान होगा। और किताबों में ऐसा लिखा, ऐ मर्दों की जमात तुम पाक साफ रहो, अल्लाह तुम्हारी औरतों को पाक साफ रखेगा। इफू तइफु निसाअकुम, इफू तइफु निसाअकुम, कि अगर तुम साफ सुथरे रहे तो हम तुम्हारी औरतों को भी। क्या मतलब इसका? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इसका मतलब ये समझाते थे कि अगर कोई लड़का बुराइयों में मुब्तला हुआ तो उसने अपने सर पर कर्जा चढ़ाया, अब ये कर्जा उसको चुकाने का है। अब ये कर्जा कौन चुकाएगा? या तो अल्लाह ये कर्जा, जब ये बाप बनेगा तो जो उसने गलत निगाह किसी बेटी पर की है, इसके घर में बेटी होने दो, इसके ऊपर गलत निगाह करने वाला अल्लाह पैदा करेगा। अगर इसने किसी की बहन पर गलत निगाह की है तो इसको होने दो, उसकी बहन को बड़ी, उसकी बहन पर गलत निगाह करने वाला अल्लाह पैदा करेगा। अगर इसने किसी की बीवी पर गलत निगाह की है, इसको बड़ा होने दो, इसकी बीवी पर गलत निगाह करने वाला अल्लाह पैदा कर। वो भूल जाता है मेरे घर में ये आग क्यों लगी है, मेरे घर में ये आग क्यों लगी, वो भूल जाता। हम लोग एक बार वेस्ट इंडीज में थे, तो वहाँ एक मुलाकात में साथी गए, तो मुलाकात हो गई, तो वो छोड़ ही नहीं रहा। अरे भाई मुलाकात हो गई, हमको जाने दो, मस्जिद से आए हैं ना। भाई बैठो बैठो बैठो, तो बिठाए रखा। बहुत देर के बाद उसने छुट्टी दी साथियों को, फिर उसने कहा माफ करना, मैंने आपको बहुत देर बिठा दिया। मैं बताऊं क्यों बिठाया था? मेरे घर में मेरी बेटी अपने दोस्त को लेकर आई थी, वो हमारी तो कोई शर्म न भरती, और उसको जो करना होता वो करती। मैंने आपको इसलिए बिठा दिया था कि आपकी शर्म की वजह से वो ऐसी चीज यहाँ न करे। अब घर में है और घर का चैन लुटा हुआ है। वो बचपन की गलतियां 55 में रो रही है। कब की गलतियां बोलो? बचपन की गलतियां 55 में। हंसी हंसी में करेला पाप,
गुजराती में कहावत है ना, हंसी हंसी में करेला पाप, रड़ी रड़ी में भोग हुआ पड़ी है। कोई आदमी यूं ही नहीं रुलाता, अल्लाह किसी पर जालिम नहीं है, लेकिन वो जो चूके होती है उसको करके आदमी भूल गया होता है, गलतियों को करके भूल गया होता है, तौबा भी नहीं हो पाती, वो सब जमा होती है, तो बचपन का किया हुआ 55 में रुलाता है। ये गलतियां हमारे बच्चे ना करें और इनको आगे के दिन रोने के ना देखने पाए। इसके लिए आप हजरत को ये कहते हैं कि एक सबसे पहले अल्लाह का ध्यान रखें कि हम अल्लाह की निगरानी में हैं, कैमरा में नजर मत छो, अल्लाह सब चीजें तुम्हारी महफूज कर रहा है। अगर गलतियां चुके हुई तो ये बहुत रुलाएगी, बहुत रुलाएगी, कोई भुलाया नहीं जाता। उसके लिए क्या करो, तो उसके लिए अपनी पढ़ाई के साथ अच्छे माहौल में रहो, क्योंकि कहावत है, जेवो संग तेवो रंग। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे बन गए तो ये गंदा माहौल भी तुम्हें गंदगी से बचा लेगा। हमने बच्चों को देखा है, हम लोग अभी टोरंटो में थे, तो एक बच्चा आया, और कहने लगा, मौलवी साहब, वो स्कूल में या पढ़ाई के साथ था, स्कूल में पढ़ाई के साथ तबलीग में जुड़ा हुआ था। उसने कहा, मौलवी साहब, अल्लाह ने हमें सारी गंदगियों से बचा लिया, और यहाँ वहाँ तो बहुत गंदा माहौल है, गंदी फिजा है, वहाँ कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, अपने बच्चे को कोई कुछ नहीं कह सकता, पार के बच्चे को कौन कहने जाएगा, आजाद फिजा है। उस फिजा में वो बच्चा कहने लगा, मौलवी साहब, अल्लाह ने मेरी हिफाजत कर ली कि हम इन गंदे माहौल में, गंदी फिजाओं में बचे हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचा बचा कर हम एक तरफ जमा कर दें। और फिर उसने कहा, मौलवी साहब, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो वहाँ की गंदी फिजाओं से लगकर आई हुई है, तो इस्लाम और कुफ्र की तमीज उनके अंदर से निकल गई, गैर के साथ रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैर के साथ रहा जाता है या नहीं रहा जाता, और गुनाहों से बच नहीं पाती। अब जिन लड़के लड़कियों की जिंदगियां निकाह से पहले गंदी हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो निकाह के बाद उनको पाकीज़ा जिंदगी मिल जाएगी? वो बच्चे लेकिन महफूज हैं जो बच्चे यहाँ अच्छे माहौल, अच्छे दोस्तों के साथ रहे। अभी इसी महीने में उसका मैसेज आया, मौलवी साहब, एक लड़का आया है, वो हरियाणा का है, वो गैरों के साथ रह रहा था, बड़ी मेहनत हमने उसको की और उसका सर्कल बदलवाया, और उसको अपने साथ हम लेकर जा रहे हैं, अभी 3 दिन लेकर गए हैं। अब उसका रहना अपने माहौल में हो जाए, उसकी हमारी फिक्र जारी है। ये यहाँ से दुख लेकर गए थे, तो वो वहां भी जाकर उन दुखों के साथ कि हमारे एक एक बच्चा इस दलदल से कैसे निकल जाए। तो हजरत को भी हम यही कहते हैं कि ये दलदल में तुम न फंस जाओ। इसके लिए कहते हैं, पढ़ाई के साथ सबसे पहले जो एहतमाम करो वो नमाज का करो। क्यों? नमाज की 2 नफे होते हैं। एक, जो आदमी नमाजी होता है, शैतान की ताकत उस पर नहीं चलती है। किताबों में आता है, जो आदमी जिक्र वाला होता है, शैतान यहाँ बैठता है और यहाँ से वसवसे यूं सूंठ डालता है और वसवसे डालता है। जो अल्लाह के जिक्र वाला होता है और जो नमाजी होता है, शैतान की ताकत उस पर खत्म हो जाती है, और ये सारी हरकतें उस वक्त होता है जब शैतान गालिब आ जाता है। नमाजी आदमी पर से शैतान की ताकत टूटती है। और दूसरा, नमाजी आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है, उसकी रहबरी अल्लाह करते हैं। किताबों में आता है, जो आदमी फजर की नमाज पढ़े उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो फजर ना पढ़े उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। अब शैतान के झंडे के साथ उसने सुबह की है, दिन भर शैतानी काम करेगा। तो इसके लिए हम आपको दूसरी बात कहते हैं कि हमारी स्कूल की लाइफ में किसी हाल में नमाज में जाए, जिस वक्त नमाज चली गई हम शैतान का निवाला बन जाएंगे, अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाएंगे। इसके लिए आप हजरात को दूसरी तलकीन ये करते हैं कि आप हजरात की किसी हाल में नमाज न जाए। अब नमाज हम कहाँ पढ़े? तो देखो, नमाज पढ़ने के लिए आप मैनेजमेंट को पूछने मत जाओ कि हम नमाज कहाँ पढ़े। मैनेजमेंट के कानून में नहीं है नमाज की जगह देना, तो वो आपको मना कर देंगे। मगर आप अपने बैग में मुसल्ले रखो, जहां तुम्हें कोना मिले किसी कोने में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ लो। अगर मुसाफिर हो तो, मुसाफिर नहीं हो तो 4 रकात अपनी नमाज पढ़ लो, फर्ज पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ लो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। अक्सर कोई नहीं टोकता है। हम लोग नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, साल में 7-8 महीने सफर करते हैं और बहुत सफरों में इधर उधर जाना होता है। हम लोग हर जगह एयरपोर्टों पर, अभी हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी बेंगलोर में, असर की पढ़ी बड़ौदा में, दोनों हमने गेट के पास नमाजें पढ़ी। आज तक हमको कोई रोकने वाला नहीं आया। लेकिन हम अगर अथॉरिटी को पूछने जाए कि क्या हम यहाँ नमाज पढ़े, तो हमको कहेंगे प्रेयर रूम में जाओ, और प्रेयर रूम वहां है और हमारा गेट वहां है, तो हमको मना कर देंगे। तो हम ऐसी पूछने ना जाए, चुपचाप हम अपनी नमाज पढ़ लें। अगर वो कहें बेटा यहाँ मत पढ़ो वहां पढ़ो, वहां चले जाएंगे। हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। कोशिश ये करें कि नमाज इस तरह पढ़ो आपके साथ, और जो कमजोर बच्चे हों, जिनकी हिम्मत ना होती हो, आपकी बरकत से वो भी हिम्मत कर लें। हमको 2 बच्चे मिले, जब इस तरह की बात की तो 2 बच्चे आए
कहने लगे हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म ऐसा है, लड़के लड़कियों का सरखा यूनिफॉर्म, हमें पता नहीं चलता कौन मुसलमान बच्चे हैं कौन गैर मुस्लिम बच्चे हैं, कौन मुसलमान लड़कियां मुसलमान है और मुस्लिम। उनसे साथियों ने मुलाकात में कहा तुम लोग नमाज पढ़ो अपनी जगह पर, उससे आपके पास मुसलमान आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोई एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी हमारे कंपाउंड में हम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नहीं कर सकते, तुम अपने कंपाउंड के बाहर जाकर तो कर सकते हो, तो कर सकते हैं। तो तुम्हारे कंपाउंड के बाहर किसी झाड़ के नीचे तुम अपनी नमाज पढ़ो इसी ड्रेस में, तो ये करना आप। कहा ठीक है, हम वो ये करेंगे। दूसरे साल इज्तिमा में वो बच्चे मिले, कहने लगे मौलवी साहब हमने दो ने शुरू की तो एक बच्चा तीसरा आया, चौथा आया, 15 बच्चे हमारे पास आ गए कि वो भी मुसलमान थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कौन मुसलमान है। हमने बाहर जाकर नमाज पढ़, फिर कहने लगे बच्चे आई, क्योंकि हम सबका सरखा यूनिफॉर्म है, लड़के लड़कियों का एक जैसा यूनिफॉर्म, कोई जानता ही नहीं था। हम दो की नमाज ने लड़कों को भी पहचान करवा दी कि ईमान वाले हैं और लड़कियों की भी पहचान। उम्मत को जमा करने वाला अमल नमाज है। अगर आपने नमाज का एहतमाम किया तो आपको एक दूसरे का ताउन मिल जाएगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, शैतान के तसल्लुत से निकलने का अमल, अल्लाह के रहमो करम में आने का अमल और एक दूसरे के साथ साथ सहकार से जीने का अमल हमारा नमाज है। इसलिए आप जरा से हम गुजारिश करते हैं कि हम अल्लाह को नाराज करके पढ़ाई ना करें। अगर अल्लाह को नाराज करके पढ़ाई हुई तो हम डिग्री ले लेंगे, काबिल बन जाएंगे, मकबूल न बनाए अल्लाह ने तो रखड़ते फिरेंगे, रखड़ते। आज डिग्री वाले बहुत रखड़ते हैं। आप देखो अभी कल एक जगह पर 100 आदमियों की वैकेंसी उन्होंने, और उसमें 1000 से ज्यादा डिग्रियों वाले खड़े थे, 1000 आदमी। अभी किसी एक जगह पर 10-15 आदमियों का लेना था इंटरव्यू और वहां ऐसी भागम दौड़ी हुई राजकोट में कि उसका कठेरा भी टूट गया और उसका वो भी टूट गया। क्या हुआ, सब डिग्री वाले हैं लेकिन जरिया माश नहीं बना सके। रोजी आसमानों पर से उतरती है, सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह बगैर सब कुछ का कर देते हैं। इसलिए अल्लाह को नाराज करके न पढ़े, ऐसा पढ़ो कि अल्लाह को तुम पसंद आ जाओ और तुम्हारे आने से पहले अल्लाह तुम्हारी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर दे। इसलिए अल्लाह को नाराज न करो। और अल्लाह जो नाराज होते हैं नाफरमानियों से नाराज होते हैं, अल्लाह जो नाराज होते हैं अमाल के छोड़ने से। और सबसे बड़ा अमल नमाज है। किताबों में लिखा जिसका नमाज का अमल छूट जाए वो ऐसा है जैसे उसने कुफ्र वाला अमल किया। इसलिए आप लोग नियत करो नमाज नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, रोजाना कुछ ना कुछ जो तुम 24 घंटे उस गफलत के माहौल में रहते हो, पता नहीं कहां कहां की बातें सुनते हो, तो आप थोड़ी देर 2-5 मिनट अल्लाह रसूल की बात सुन लिया करो ताकि ये गंदे जरासीम जो चढ़े हों वो उतर जाएं। इसके लिए जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो 2-5 मिनट फज़ाइल अमल की तालीम हॉस्टल में करो ताकि चार्जिंग होता रहे। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान, इसकी चार्जिंग होती रहे। वरना तो आदमी में इस्लाम और कुफ्र की फर्क निकल जाता है। देखो ये धर्म परिवर्तन के रोज पढ़ते हैं उसने फला लड़के की मोहब्बत में, क्यों कि उसको इस्लाम की कीमत खत्म हो गई, इस्लाम के साथ मरने की कीमत उसके दिल में से निकल गई, वो आदमी कुफ्र पर राजी हो गया। हम रोजाना इसको सुनते रहें ताकि ताकि ईमान और इस्लाम की अजमत दिलों में आ जाए। ये फजल अमल फजल किताब सत्तर की किताब में क्या लिखा है पता है? मुसलमान कैसी जिंदगी गुजारेगा वो चीजें लिखी है। तो हमारी गुजारिश है, तो दिन भर 24 घंटे में पता नहीं कहां कहां की बातें सुनते हैं, तो कम से कम 5 मिनट, कितने मिनट बोलो, अपने हॉस्टलों में फजाइल की तालीम जरूर सुनो ताकि चार्जिंग होता रहे। सुनोगे इंशाल्लाह। जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते घरों को आ जाते हैं, वो अपने घरों पर अपनी मस्जिद में 5 मिनट तालीम सुने, 5 मिनट अपनी मस्जिद की तालीम सुने। वो मस्जिद में अपने मोहल्ले की तरफ चार्जिंग हो जाएगा, उसको वहां चार्जिंग हो जाएगा। सुनोगे तालीम इंशाल्लाह। चौथी बात, तीसरी बात, एक नमाज ना छोड़ो, रोजाना तालीम में बैठो। तीसरी बात, जो फिक्र आपने अपनी की, आपकी हॉस्टल में और भी ईमान वाले हैं, वो आपके भाई हैं, वो आपके भाई हैं। वो ऐसी ऐसी बस्तियों से आपके वहां आते होंगे कि बाज़ बस्तियों में तबलीग का नाम भी नहीं है, बाज़ बस्तियों में होगी जहां मस्जिद नहीं है, अजान नहीं होती, वो बेचारे गफलत के माहौल में हैं। वो हमारे भाई है, हमने और उन्होंने कलमा पढ़ा है, वो हमारे कलमे के भाई हैं। वो हमारे बच्चे जाए हो जाएं, वो हम उस पर राजी नहीं हैं। बोलो आप लोग राजी हो? अरे बोलो आप राजी हो? जैसे तबलीग के जिम्मेदार आपकी फिक्र करते हैं, आप उनकी फिक्र करो। आप उनकी फिक्र, क्या फिक्र करो कि हमारे स्कूल में कितने मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा भी जाए हो जाए उस पर हम राजी नहीं है। तो सर्वे करो, हर क्लास के बच्चे सर्वे करो, मेरी 10वीं की क्लास है इतने मुसलमान बच्चे हैं, ये 11वीं की क्लास है इतने मुसलमान बच्चे, ये 12वीं की क्लास, ये कॉलेज की, ये फलां की। हर बच्चा अपने अपने स्कूल का सर्वे करे कितने मुसलमान बच्चे हैं, उनके अंदर कितनी गफलत है, उसको उस गफलत पर रहम खाओ। कैसे रहम खाओ? उसके लिए आप हजरात
उन बच्चों का लिस्ट बनाओ कि कितने आपके वहां मुसलमान बच्चे हैं, और रोजाना मशवरा करो, 5 मिनट का मशवरा। एक आपको 5 मिनट की तालीम करनी है और दूसरा 5 मिनट का मशवरा करना है। मशवरा क्या करना है? हमारे इस कॉलेज के बच्चे हैं, उनसे कौन मिलने जाएगा, उसका सिर्फ कितने मिनट का मशवरा बोलो? 5 मिनट का। जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, घरों में आ जाते हैं, वो अपनी मस्जिद वार जमात के साथ बैठकर मशवरा करें कि हमारे मोहल्ले में इतने इतने मुसलमान बच्चे हैं, वो बच्चे गफलत में हैं, वो बच्चे सुस्ती में हैं, उनकी सुस्ती कैसे दूर हो जाए, उसके लिए मस्जिद वार जमात के साथियों को लेकर उनसे मिलने जाना है। कितने मिनट का इसके लिए मशवरा करो? 5 मिनट की तालीम, 5 मिनट का मशवरा। कितनी मिनट हो गई? मशवरा करने के बाद तीसरा काम करो। तीसरा काम ये करो, 10 मिनट उनकी मुलाकात के लिए फारिग करो। कितने मिनट बोलो? सिर्फ 10 मिनट फारिग करो। दो दो की जोड़ी बन जाओ, ये दो जोड़ी बन जाओ। और आपके हॉस्टल में जो आपके कॉलेज में मुसलमान बच्चे हैं, उनको टारगेट बनाओ कि आज हम दो इससे मुलाकात करेंगे, कल इससे करेंगे, परसों इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। एक एक को टारगेट बनाकर मुलाकात करो। लेकिन मुलाकात कब कहां से लाओगे? तो आपके पास 3 वक्त है, उन 3 वक्तों में से किसी एक वक्त में आराम से कर सकते हो। स्कूल शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले चले जाओ। जो मुसलमान बच्चा मिले उसको कंधे पर हाथ रखो, भाई खैरियत से, ठीक है, यूं करके उससे दोस्ती लगाओ, दोस्ती लगाओ। दूसरे नंबर पर, अगर शुरू में नहीं हो सकता तो बीच में रिसेस का टाइम मिलता है ना, उसमें आप देख लो, 10 मिनट उससे मुलाकात कर लो। या छुट्टी में 10 मिनट आप किसी बच्चे को खैर खैरियत पूछो, भाई आज साथ में चाय पियेंगे, साथ में चाय पियेंगे। स्कूल की लाइफ से ये बच्चे आपकी दोस्ती में आ गए तो फिर वो इंशाल्लाह आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे। हजारों बच्चे दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिनको दोस्ती से लोगों ने उठा लिया। हम लोग रायगढ़ में थे, तो एक मौलाना साहब हैं, आप भी उनको जानते होंगे, मौलाना तारिक जमील साहब, जानते हैं आप? हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मौलाना कहने लगे कि मुझे एक बच्चे ने मुतवज्जह कर दिया कि मैं तो गाने सीखने जा रहा था, गाने सीखने मिस्र जा रहा था, मिस्र। मेरा एक दोस्त था बंगाली, स्कूल लाइफ का, वो हमेशा हमें इस तरह मिलने आता, हम सुनते नहीं थे उसके बाद, क्योंकि हम तो स्कूल लाइफ में बड़े गाने गाते थे, वो गाने सुनाते हैं। मौलाना को अभी भी गाने बहुत याद है। वो जुनैद जमशेद एक थे बुजुर्ग, आप जानते हो उनको? वो बड़े जुनैद जमशेद जो थे ना, वो भी उसी लाइफ में थे। वो तौबा करके आ गए, फिर नज़में बनाते थे, तो मौलाना के पास आकर नज़म सुनाते थे कि मैंने ये नहीं बनाई है। तो जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते, मौलाना कहते हो भाई जुनैद रुक रुक रुक, ये फला गाने के टॉन पर है, फला गाने के। तो वो कहते थे मौलाना तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पकड़ पाता, तुम पकड़ लेते हो कि कौन से गाने के टॉन पर गया हूं मैं, तुम ही पकड़ लेते हो, इतने उनको याद। लेकिन वो कहने लगे वो बंगाली मिलने आता था तो हम ज्यादा सुनते नहीं थे उसकी। एक बार वो बंगाली नमाज पढ़ा था, तो मैंने उसको देखा, यार ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, इसकी बात तो सुननी चाहिए, ये तो बड़ा नेक है। तो एक बार मुझे मिलने आया और कहने लगा था, 1 तारीख अपनी छुट्टियां हो रही है, तुझे 3 दिन मेरे साथ आना है। तो मैं उसकी इबादत से डर गया था, इसलिए मैंने नक्की किया कि इसके साथ 3 दिन इसकी बात मान लेनी है, फिर जो करना है करूंगा। तो वो मुझे स्कूल में से उठाकर 3 दिन ले गया। मैं तो तखत पर डांस करता था, गाने गाता था, यूं कहते थे, गाने गाता था। लेकिन ये बच्चा मुझे स्कूल से उठा गया, अब वो बन गया मौलाना। पता नहीं कितनी दुनिया को पैगाम सुना रहे हैं, पूरी दुनिया को पैगाम सुना रहे हैं। लेकिन मौलाना को सवाब बाद में मिलेगा, उसका वो कमाई किसने की है? वो बंगाली बच्चे ने। वो जितना भी उनको करना हो करें, खाते में किसके जाएगा? ऐसे तुम्हारे हाथों स्कूल की लाइफ में कोई बच्चे मिल गए ना, तो वो पता नहीं दुनिया में कितना काम करेंगे, तुम्हारा खाता बड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए शैतान जो है ना, शैतान वो लोगों पर मेहनत नहीं करने देता, वो अपना अपना कर लो, कोई वांधा नहीं। और ये लोगों पर मेहनत करेगा, पता नहीं ये कितना बड़ा आदमी सामने वाला बन जाएगा। ये आपके यहाँ का अब्दुल करीम साहब इंजीनियर थे, शब्बीर जफर साहब थे, बड़े बड़े, उन्होंने बड़ा काम किया, उनके हाथों पता नहीं कितने लोग तबलीग में लग गए। अब वो अब्दुल करीम साहब को तो बाद में मिलेगा, लेकिन अब्दुल करीम साहब को जितने लगे हैं उसको पहले मिलेगा, है ना? आपके यहाँ बड़े जाकिर साहब इंजीनियर हैं, और शब्बीर जफर साहब हैं, और अब्दुल करीम साहब हैं, और फलां साहब और फलां साहब, वो सबको किसी ने तबलीग में लगाया। ऐसे आपको भी कमाने का मौका मिला है। उन बच्चों से 10 मिनट की दोस्ती लगाओ, भाई आज चाय साथ में पियेंगे, सूखी तबलीग नहीं। कौन सी तबलीग? अपनी जान लगाएंगे और अपना माल, और उस बच्चे को कवर करेंगे। हमारे मौलाना सईद खान साहब यूं कहते थे, पहले बच्चा आदमी निगलेगा, तुम्हारा खाना अंदर निकल फिर निकलेगा। पहले क्या करेगा? एहसान करो, आदमी एहसान का गुलाम हो जाता है। अलमर ओ अब्दुल एहसान, तो उन पर एहसान करो, 10 2 रुपए की चाय पिला दो, 5 रुपए की चाय, समोसा वमोसा खिला दो, कभी घर से उसके लिए कुछ ले गए,
हमारा इसके पीछे ध्येय क्या है, हमारा हेतु क्या है, हमारा मकसद क्या, इस बच्चे को कवर करना। अम्मी ने कभी कुछ पकाया और डिब्बे में ले जाओ, भाई तुम्हारे लिए लाया हूँ, उसका दिल खुश हो जाएगा। आपने 2 रुपए में उसको खरीद लिया। तो अपने बच्चों के साथ 10 मिनट की दोस्ती लगाओ, दोस्ती लगाकर 2 चीजों की फिक्र दिलाओ, वो भी इन अमाल के साथ पढ़ने वाला बने, एक। दूसरा, उसके गलत दोस्त न बन जाए, उसके दोस्त अच्छे दोस्त बने, उसकी फिक्र करो। तीसरी बात, अगर वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, कच्चा पढ़ रहा है, हम उसको एहसास दिलाएं, भाई नहीं, कच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे बड़ी कुर्बानी दी है, हम यहाँ बड़े डोनेशन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद पहुंचे हैं, हम कच्चा नहीं पढ़ेंगे। हमारा एक बच्चा भी रैंक में कच्चा जाए, हम उस पर राजी नहीं है। हम उसको पढ़ाई की भी फिक्र दें, अच्छे दोस्तों की भी फिक्र दें, और अच्छे अमाल की भी फिक्र दें। अगर आपने उनको फिक्र दी तो ये सारी चीजों में पक्का हो जाएगा। तो ये 10 मिनट की मुलाकात में हमें इसकी फिक्र करनी है। तो आप लोग मुलाकात करोगे इसकी? कौन कौन मुलाकात करेंगे मुसलमान बच्चों की? कितने काम हो गए? एक, नमाजों का एहतमाम करना है, रोजाना 5 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट मुलाकात है। और उन मुलाकातों में उनको कहो, भाई हमारी छुट्टियां होगी ना, तो छुट्टियां महीने में अगर 3 दिन की छुट्टियां पड़ेगी तो हम भी 3 दिन जाएंगे, तुम भी हमारे 3 दिन चलो। क्योंकि तबलीग में वो जब निकलेगा ना, वो चार्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मोबाइल चार्ज करते हो, तो बात करने के लायक फोन नहीं था, चार्ज किया तो उसके अंदर मैसेज भी आना शुरू हो गए, ये भी चालू हो गया, वो भी। तबलीग का काम ऐसे चार्जिंग कर देता है आदमी को। जब वो 3 दिन लगाएगा ना, तो चार्ज हो जाए। तो आप लोगों को भी 3 दिन लगाना है, उनके भी लगवाने हैं, आपको भी लगाना है। और अगर आपके पास 3 दिन की छुट्टी नहीं है, तो पढ़ाई को छोड़कर आपको 3 दिन नहीं जाना, क्योंकि आप पढ़ने का जमाना है, तो पढ़ाई छोड़कर नहीं जाना। 2 दिन जाओ, सैटरडे संडे जाओ। अगर 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन जाओ। अगर 2 दिन भी छुट्टी नहीं है तो 24 घंटे जाओ। मगर महीने में कुछ ना कुछ जाते रहो, ताकि तुम चार्ज होते रहो। तो जाओगे इंशाल्लाह। तो जिनको 3 दिन की छुट्टी मिले, कितना जाएंगे? और 3 दिन की ना मिले तो, और 2 दिन ना मिले तो, ये कर लो। उन बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाओ। और अपने वहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है, आपके वहाँ दादा मियाँ में होता है, पीर कमाल में होता है, और खेड़ा में भी होता है। तो उन बच्चों को उस माहौल में घंटे के लिए लाओ। 1 घंटा तुम उनको दोस्ती बनाकर लाओगे ना, तो वो संभल जाएगा, और पता नहीं कितनों को संभालेगा। एक मरतबा हम इज्तिमा में गए, कच्छ में गए, जिस तरह तुम्हारे यहाँ है। तो एक लड़का मिलना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत? जी खैरियत। मुझे पहचाना नहीं, मैं गोलमेर कॉलेज में पढ़ता था, श्यामड़ा जी में, डॉक्टर वहां बना हूं। मैं आप लोगों को वहां देखता था। मैं तो ऐसे घर का हूँ, मेरे घर में दीनदारी 0% है, खत्म मेरे घर में। लेकिन वहाँ कुछ दोस्त मेरे सर्कल थे, वो हर जुमेरात को मुझे कहते थे कि यहाँ प्रोग्राम होता है मरकज में, तुम आओ। और वो अपने घर से खाना लाते थे और अपने साथ हमको खिलाते थे। तो मुझे बहुत सारी गलत फहमियां दिमाग में थी। मैं आता गया तो मुझे अच्छा माहौल मिल गया, तो मैं गुनाहों से बच गया, गंदे दोस्तों से बच गया, और मैं संभल गया। पर मेरा घर यहाँ जो है, वो गैर मानूस है, वो तबलीगी काम को मानता नहीं है। तो मैं खुलकर कोई तबलीग नहीं कर सकता। लेकिन मेरी क्लिनिक है, मैं जो दवाई लेने आते हैं, मैं कुछ उसको समझाता रहता हूँ, क्लिनिक पर बैठे बैठे लोगों को समझाता हूँ। मुझे पता चला इज्तिमा में, इज्तिमा में तुम आए हो, मैं इसलिए तुमको मिलने आया हूँ। मेरे कुछ दोस्त डॉक्टर हैं, मैं उनको लाऊं? तो हमने कहा हम तो मिलने ही आए हैं, और गाय के लिए आए हैं। तो रात को 5 आदमियों को लेकर आया। तो ये 5 डॉक्टर तो मकानी हजरात थे, वो कहने लगे, ओ ये तो हमारे यहाँ का फला डॉक्टर है, ये हमारे वहाँ का फला। ये कौन लाया? ये लाया। भाई तुम कैसे लाए? हमारे सब क्लास हमारे साथ में पढ़ते थे। तो वो जिनको नहीं ला सकते थे, वो एक लड़का सबको लाने का जरिया बना। हमारे इन बच्चों को हम माहौल में ले जाएं, हफ्तावारी इज्तिमा के माहौल में लाओ, तो इंशाल्लाह आपको भी नफा होगा, और आपके जरिए से उनको भी नफा होगा। लाओगे इंशाल्लाह? और आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे रहो। अगर आप अपनी पढ़ाई में कच्चे पढ़े, तो ये खयानत है। क्या है बोलो? खयानत। खयानत ना करें, खयानत अल्लाह को नापसंद है। आपके माँ बाप ने आपके लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और आपसे बड़ी आशा रखी है। तो आप अपनी पढ़ाई को, फिर आपके दीन की बात का भी वजन नहीं होगा कि ये बच्चा दीन के काम करके फिरता है, वो तो नंबरात में बहुत कमजोर जाता है। तो जो तबलीग में लगता है वो डल हो जाता है, जो तबलीग में लगता है वो डोबा बन जाता है। तो आपकी बात का कोई वजन नहीं बनेगा, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अल्लाह के साथ भी खयानत होगी, और दीन के काम में बजाय आप मुआविन बनने के रुकावट बन जाओगे। इसलिए आपकी पढ़ाई में कच्चा पन्ना है। जो गुज़िश्ता साल आपकी पढ़ाई थी, उससे अच्छी पढ़ाई इस साल होनी चाहिए। तो आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो, उसकी फिक्र हो। फिर जब सालाना छुट्टियां हो, सालाना छुट्टियां, तो फिर उसमें इन वेकेशनों को बर्बाद ना करो।
10 दिन की छुट्टी हो 10 दिन चले जाओ, 20 दिन की हो 20 दिन के वेकेशन में चले जाओ, 30 दिन के हो तो 30 दिन, 40 दिन के हो 40 दिन चले जाओ। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तुम्हारी, तो फाइनल ईयर पूरा हो जाए, तो फाइनल ईयर पूरा होने के बाद पहले 4 महीने लगा लो, 4 महीने लगाकर फिर तुम अपनी जॉब और सर्विस में जाओ, ताकि तुम जिसमें जाओगे ना वहां बहुत सारी गंदगी होगी, वो गंदगी तुम्हें न लग जाए। ऑल प्रूफ बन जाओ। कैसे बन जाओ? ऑल प्रूफ। तुम्हें पैसे भी ना खरीद सकें, किसी की दाम दपट भी ना खरीद सकें, धमकी भी ना खरीद सकें, कोई चीज तुम्हें बेच ना दे, इस पैसों में तुम बिक न जाओ। इसके लिए अंदर अल्लाह का डर आ जाना चाहिए, वरना तो इस दुनिया में आदमी थोड़े थोड़े पैसों में सब कुछ धर्म बेच देता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना। हम ऐसा नहीं कि हम तो उधर के हवा हो जिधर की, ऐसे बन जाओगे तो हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई, हम बिकाऊ माल नहीं है। चाय की प्याली में बिक गए, एक पकौड़े में बिक गए, एक समोसे में बिक गए, बिकाऊ माल बनोगे? अरे बोलो भाई, बिकाऊ माल बनोगे? हमने यहाँ के बच्चे देखे हैं। एक अभी हम लोग अभी अगस्त में हम लोग वहाँ गए थे न्यूयॉर्क वगैरह, तो वहाँ इस्टीमा में एक लड़का यहाँ से पढ़कर वहाँ जितने बच्चे जाते हैं ना वहाँ जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि फीस निकालने की होती है। तो अजीब अजीब जॉब। एक लड़का कहने लगा कि मैं ओला चलाता हूँ, ओला। तो मेरे साथ एक कॉल आई, तो मैं लेने गया रिसीव करना, तो मैंने देखा 4 लड़कियां हैं। अब मैं उनको रद्द भी नहीं कर सकता, बिठाऊं तो मसला, मैंने बिठा लिया। वो मैं गाड़ी चलाता रहा, पूरे सफर में मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की, बुराई के लिए मुझे तैयार कर रही थी। मैं अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह मेरी हिफाजत कर ले। मैं उनको ड्रॉप किया, अल्लाह ने मुझे बचा दिया। अब उस माहौल में 4 लड़कियां एक लड़के को वरगलाए, ये अंदर अल्लाह का खौफ आ गया हो, वो कहीं बिकता नहीं है, कहीं नहीं बिकता। ऐसे इन अंगारों पर, ये अंगारे हैं, अंगारे उस पर वो चल रहे हैं, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत के साथ। ये आपके 4-4 महीने लग जाएंगे ना, तो न लड़कियां तुम्हारा ईमान खरीद सकेगी, न पैसे खरीद सकेगी। हम लोग भरूच थे एक मरतबा, भरूच, तो एक लड़का मिलने आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना पहचाना? नहीं भाई, हम फला कॉलेज में पढ़ते थे, आप मिलने आते थे। जी जी याद है, याद है। तो यहाँ क्या करते हो? कहीं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मेरी सर्विस लगी है, गवर्नमेंट जॉब। कैसा चल रहा है? हमारी साहब अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कि यहाँ वो जो चेकिंग में जाते हैं ना, तो लाइट की चेकिंग में उसमें हम लोग जाते हैं। तो मौली साहब यहाँ GIDC है अंकलेश्वर, तो जिनको पकड़ते हैं ना तो थैले भरकर पैसे होते हैं। कैसे पैसे होते हैं? बड़ी बड़ी चोरियों में बड़े बड़े पैसे होते हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है, आज तक मैंने हराम की चारानी भी नहीं खाई है, हराम की चारानी नहीं खाई। और वहां लाखों में बात हो रही थी, हराम की चारानी मेरे पे, जवान बच्चा, जवान। मैंने पूछा फिर कैसे हो रही है, कैसा गुजर रहा है? तो उसने कहा मैंने अपने साहब से कह दिया कि मैं ये नहीं खा सकता हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ ये, और मैं होने भी नहीं दूंगा। तो अब वो जब जाते हैं तो मुझे दूसरी तरफ भेज देते हैं, और वो टीम पूरी एक तरफ जाती है। तो मेरे अल्लाह ने मेरा इंतजाम कर दिया, उनके साथ मुझे जाने का मेरा अल्लाह ने खत्म कर दिया, कि मेरी अजीमत पर, कि मैं इन गंदे पैसों से बच गया। अब पैसों में आदमी नहीं दिखता, रोज रोज पैसे, रोज पैसे। मैं समझा इसके 2, 5, 10, 4 महीने लग गए होंगे। तो मैंने पूछा भाई कितने 4 महीने लगे? तो मेरा तो अभी जिंदगी का चिल्ला भी नहीं लगा है। तो ये तेरे अंदर शक्ति कहां से आ गई? तो उसने क्या कहा पता है? तो शक्ति कहां से आई? हमारी साहब स्कूल के जमाने में मेरे 6 मरतबा 10 दिन लगे हैं, सिर्फ 10 दिन में ये चार्जिंग कर दिया। ये खोटा है, हम इसको नहीं कर सकते। तो जब जिसके चिल्ले लगते रहे, जिसके 4-4 महीने लग जाए, तो सच बताओ क्या वो बिक जाएगा? इसलिए अपने आप को इस माहौल में जाने से पहले इतना पक्का करना है कि कोई भी हमें खरीद ना सके, कोई हमें बेच ना दे। पक्का करके जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा कि हम तो उधर के हवा हो जिधर की। अरे भाई ऐसा तो नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ अल्लाह की निगाहों से गिर जाओगे। असबाब बहुत भारी होंगे, लेकिन जब अल्लाह ही की निगाह से गिर गए, अल्लाह ही न रहा, तो न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे। हम ऐसे नहीं बनेंगे, पक्के रहेंगे, और अल्लाह के साथ भी वफादार, और अपने वालिदैन के पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन इसकी नियत करता है? इस साल किसका किसका फाइनल ईयर है? जरा हाथ उठाओ। इस साल किसका किसका फाइनल ईयर है? जरा हाथ उठाओ अच्छे से, जरा खड़े हो जाओ बेटा। किसका फाइनल ईयर है वो जरा? भाई ये टॉफी वाले हाथी साहब कहाँ जा रहे हैं? भाई इतना जल्दी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतनी अच्छी होकर ऐसा करते हो? ओहो भाई बेटा, जिसका फाइनल ईयर है जरा खड़े हो जाओ, सब इस कोने में आ जाओ बेटा, सब इस कोने में आ जाओ बेटा, सब इस कोने में आ जाओ बेटा, सब इस कोने में, जल्दी जल्दी सब इस कोने में आ जाओ भाई, सब आ जाओ। मुझे आपकी कर्जदारी पूछनी थी, मगर कर्जदारी पूछना रह गई।